Now the next one is your phylum, that is mollusk. That is called mollusk or mollusca. Okay. Now this is the second largest phylum. Okay. First wala kaun sa tumhara? That is called phylum Arthropoda. Now this is the phylum mollusca. Usually they are terrestrial. Terrestrial means they are found on the land. Some are also aquatic bhi hai, or you can say marine. That is marine. Okay, marine, that is the sea water. So you can find them on terrestrial land or that is on the water also. अब सिस्टम जो लेवल है वो हमारी सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में ही है. सो द सेम थिंग इज हियर, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. अब तो सारे ऑलमोस्ट बायलैटरली सिमेट्रिकल है. इस तरह से याद रखना है आपको. पोरिफेरा, दैट इज योर विच वन, asymmetrical. Coelenterata, Cnidaria, and that is called Ctenophora. They are your which one, that is called radially symmetrical. Rest all are the bilaterally symmetrical. Even the roundworm, its name is roundworm, but they are bilaterally symmetrical. So these are the same thing. ये same है, ऑलमोस्ट हर जगह सेम होते आ रहा है, राइट. सो बायलैटरली सिमेट्रिकल. जर्माइनल लेयर कितने, ये भी ऑलमोस्ट सेम है. ट्रिप्लोब्लास्टिक. सिलोमेट है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है करके ही सिलोमेट है. ओके, सो ये हो गया आपके सिलोमेट हो गए, राइट. सर्कुलेशन, आई वांट यू टू रिमेंबर हियर इन इंसेक्ट आल्सो and in mollusk also circulation is open. So we already discussed what is open circulation. There is no closed cavity like artery, veins and capillary. So it's open circulation, directly blood spill out and the organ take that spill out blood. Okay, now in case of mollusk the body is covered. This is a new point. Okay, so the body is covered, not really the new point. You can see insect also there is an exoskeleton which is made up of the chitin. So in case of mollusk also the body is covered with calcareous shell. Calcareous, you already know, that is the calcium one. Okay, calcium carbon. Body is covered with the calcareous shell and here it is not segmented. ये बहुत जरूरी है. जैसे आपके ऑर्थोपोड में कैसा था, सेगमेंटेड था. अब यहां पर देयर इज नो सेगमेंटेशन. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर देयर इज हाउ द बॉडी इज डिवाइड. नाउ इन दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोपोड, बॉडी इज डिवाइडेड टू हेड, स्लाइट नेक, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. कहां तक था, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन. जॉइंट लेग थे, लोकोमोशन था इसलिए. ओके, अब यहां पर द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू head. Most importantly the body is divided into head. That is the head. Muscular, that is called foot. Foot भी है, muscular foot. ये थोड़ा सा exaggerated word है. That is foot है, लेकिन foot कैसे है, that is the muscular foot plus a visceral hump. अब ये कुछ नया है, hump. If you see on our back side, our back is straight. It is not, ये है हमारी back. इस तरह से hump रहती है हमारी back. No, it's not a hump like that. Okay, but in mollusk you can specially see there is a visceral hump. Okay, this visceral hump we can see here. One of the example of mollusk is, you can see here, this is the snail. Everybody see the snail, and I will just make it bigger. थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं. Raul, you can see here. I can make it more big. Can you see? Hump. This is the visceral hump. This is the mouth. This is some kind of sensory, okay, tentacles. This is the tail like, and there are foot, which is the muscular. That is the muscular. But this is a one-up type of your which one, that is called mollusk. Head, muscular foot, and visceral hump. These are the characteristics of your which one, that is called the mollusk. Now, if you see the skin, soft रहेगा. Okay, the skin is soft, spongy. Okay, if you see the mollusk, the skins are soft
and spongy, there is a layer of skin, and that is called mantle. That is called mantle. So वापस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, इनका जो हम्प है, इनका जो स्किन है, इसके ऊपर दैट इज ऑलरेडी अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. Over the soft and spongy skin, there is a layer of skin-like structure, and that is called mantle. That is called mantle. So this mantle, you have to remember it. So in case of mollusk, there is a mantle. Okay. So skin कैसी है, पूरी soft और spongy है, उसके ऊपर एक layer है skin के ऊपर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is called the mantle. Okay. Now this mantle is present over this visceral hump. ये जो hump है, इसके ऊपर वो है लेयर, दैट इज कॉल्ड मैंटल. ओके, नाउ इफ यू सी देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन मैंटल एंड स्किन, देयर इज अ स्पेस. ओके, अभी यहां हम लोग को ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, लेकिन नॉर्मली यहां पर कैसा है, मैंटल रहता है और नीचे स्किन रहता है, इन बिटवीन दैट देयर इज अ स्पेस. दिस स्पेस, ओके, यहां रहेंगे गिल्स स्लिट. आपको ऑलरेडी हम लोगों को यहां से देखा है, दीज आर द गिल स्लिट. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल स्लिट? दैट इज फॉर द रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं. कहां मिलेगा वो? सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन के ऊपर एक मैंटल रहेगा. मैंटल और सॉफ्ट स्पॉन्जी जो हम्प है, विसरल हम्प, उसके बीच में जो छोटी स्पेस है, वहां पर क्या मिलेंगे आपको? गिल स्लिट. ओके, सो वेयर देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और यू कैन से गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस हो सकते हैं, या एक्सक्रीटरी वेस्ट वहां से दैट इज कॉल्ड निकल सकते हैं बाहर. राइट नाउ यू कैन सी दीज आर व्हाट द टेंटेकल्स. हेड इज यूजुअली हैविंग द सेंसरी tentacle. Can you see here? Okay, you can see the sensory tentacle, and there are eyes also. You cannot see, this is a dark image, but there are eyes and two pair of eyes. Okay, and the brain is there, that is the nerve cord. Okay, so eyes भी है. sensory organ में क्या क्या आएगा? tentacle आएगा और pair of eyes आ गए. right, so pair of eyes आ गए, टेंटेकल आ गया, और सीएनएस में पेयर ऑफ गैंग्लियन, सेम वैसा ही पहले जैसा, विथ पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड, विथ पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड. सो टू पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड विथ a pair of, that is called the ganglion. Now what basically this mantle is, ये हम लोग बोल रहे हैं ना, mantle है, स्किन के ऊपर एक mantle है, स्किन जैसा ही दिखता है, but that is the mantle. Mantle is nothing but the secretion. It is nothing but the secretion. इनकी जो स्किन की ग्लैंड है, they basically secrete calcium carbonate. Okay, they secrete the calcium carbonate along with amount of chitin plus protein. ये सारे सिक्रीशन मिलाकर यहाँ पर एक शेल जैसा एक कवरिंग बन जाता है. राइट, एंड दैट इज कॉल्ड द मैंटल. और वो कहाँ रहता है? विसरल हम्प के ऊपर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ रहेगा वो? दिस इज प्रेजेंट अबाउ द विसरल हम्प. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर विच वन? दैट इज कॉल्ड द मॉलस्क. सो मॉलस्क में आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट नया आ गया यहाँ? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड है, इट्स लाइक अ विसरल हम्प है पूरा, देन सम मस्कुलर फूट है. विसलर हम्प के ऊपर एक थोड़ा सा कवरिंग जैसा है, स्किन जैसा, दैट इज अ शेल, बट इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, chitin and protein, and there is a space in between the mantle and the skin, which is having gill slit for the exchange of gases, or you can say that is called excretion. So this is all about your which one? That is called the, क्या नया है इसमें? There is one more thing. If you see the mouth of, थोड़ा सा सामने लेकर आते हैं, so I just move here. Okay, और थोड़ा इसको सामने कर देते, थोड़ा सा ऊपर कर देते, तो you can see here. Okay, ऐसे मैं निकाल देता अभी, सो यू कैन कॉन्सेंट्रेट इट. ये उसके सेंसरी टेंटाकल है. नो यू कैन सी हियर देयर इज अ माउथ, देयर इज अ माउथ, और माउथ में से एक ऐसा टंग लाइक चीज बाहर निकलती है. ओके, फ्रॉम माउथ टंग लाइक थिंग्स कम आउट. और वो जो हमारी तो टंग है, और उस टंग लाइक
रैस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं उसको, RASPING, रैस्पिंग ऑर्गन, रैस्पिंग यानी टंग जैसा, दैट इज कॉल्ड रैस्पिंग ऑर्गन. इसका नाम है, आई विल जस्ट राइट हियर, रेड्यूला. That is called radula. So what is the name of this rasping organ? That is called the radula. Okay, so we will see one more mollusk. एक और mollusk देख लेते हैं हम लोग, right? I just make it one more. ये snail हो गया, no? Okay, everybody know, right? This one, that's the octopus. थोड़ा सा नीचे कर देते, थोड़ा सा बड़ा कर देते, right? थोड़ा साइड कर देते, इधर आ जाते. Okay, okay. Can you see here? So these are the tentacles. साइड में देखो उसके आईज है, राइट, और नीचे अंडरनीथ द, इधर उसका बहुत बड़ा विसरल हम्प है. सो दिस इज अ एनिमेशन स्पेसिफिकली. इफ यू वांट टू सी द रियल ऑक्टोपस, आई विल शो यू दैट आल्सो. ये तो एनिमेशन वाला है. ओके, नाउ लुक एट दैट. थोड़ा सा छोटा कर देते. ओके ओके, नाउ यू कैन सी, इधर कर देते. कैन यू सी? सो दीज आर द टेंटेकल्स. ये उसके ग्रास्प करने के लिए है. थोड़ा नीचे कर देते यानी आपको हेड दिखेगा. थोड़ा सा ऊपर कर देते, इसे थोड़ा नीचे कर देते. कैन यू सी? दीज आर द आईज and this is called basically the visceral hump. This is called a visceral hump. साइड में कर देते हैं हम लोग इसको, right? So this is your which one? One more example of your which one? That is called the octopus. और इसका जो माउथ है, माउथ के अंदर से टंग नहीं, इसके पास टंग लाइक रास्पिंग ऑर्गन है जिसको बोलते हैं रेड्यूला. ओके, दैट इज कॉल्ड रेड्यूला. नाउ हियर नहीं, ऑलरेडी इन केस ऑफ बेसिकली दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग बोलते थे इंसेक्ट में देखो मेल फीमेल अलग है, तो यहां पर भी अलग है. यू कैन से दे आर डायोशियस. व्हाट इज डायोशियस? मेल एंड फीमेल, दैट इज द सेक्सेस आर सेपरेट एंड बेसिकली दे आर ओविपेरस. ओविपेरस. ऑक्टोपस, they are eggling, they are basically oviparous. And because of oviparous, whatever the baby is produced, that is in larval form, then enlarge. Okay, and after enlargement they will give the different structure. So this development which is changing from one stage to another, इसको हम लोग हर वक्त क्या बोलते हैं? Indirect type of development. So in case of mollusks you can see indirect type of development. और sexes separate है और aquatic है, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है. They can send the male gamete and female can send the female gamete. They fuse to form the zygote in the water, aquatic है, and because of that they can get the external fertilization. तो ये सारा हो गया आपका mollusk के बारे में. There are so many examples of the mollusk. Okay, एक तो आपका अभी हो गया, that is called octopus. Octopus को हम लोग क्या बोलते हैं? Devil fish. What you call octopus? That is called the devil fish. The apple snail आपकी बुक में दिया है, apple snail. Okay, so this apple snail is the example. उसको हम लोग बोलते हैं पाइला. पाइला is nothing but the apple face. Devil fish इसको बोलते हैं, we can call the octopus को. There are so many example. Oyster, अगर आपको याद होगा, oyster, pearl oyster. Oyster are nothing but it comes under the mollusca, जिसको हम लोग पिंकटाडा बोलते हैं. साइंटिफिक लैंग्वेज में इसका नाम है पिंकटाडा, राइट? सेपिया कटल फिश. ओके, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर विच वन? दैट इज कॉल्ड मॉलस्को. एक लॉलीगो हो गया, लॉलीगो. स्क्विड, इट लुक लाइक द सी हॉर्स बट इट्स डिफरेंट. ओके, इट्स अ लॉलीगो. ऑक्टोपस हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड द डेविल फिश. बहुत सारे हैं इसमें, राइट? There is one more that is called dentalum. That is called dentalum. Dentalum को dentalum इसलिए बोलते हैं कि उसके माउथ में से थोड़ा सा ऐसा दांत जैसा बाहर निकलता है. टस्क, एलिफेंट के कैसे टस्क रहते हैं, एक्चुअली इसका नाम ही टस्क शेल है. टस्क शेल, इसका जो शेल है तो इस तरह से दांत जैसा दिखता है, राइट? सो यू कैन कॉल इट इज द डेंटैलम. दांत जैसा दिखता है बिकॉज द शेल विच इज फॉर्म, इट इज द टस्क लाइक. एलिफेंट के कैसे टीथ रहते हैं, इट इज द टस्क लाइक, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डेंटैलम और डेंटालियम. ओके, देयर आर सो मेनी एग्जांपल बट दीज आर द कॉमन एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन द एनसीईआरटी. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस एग्जांपल. सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हिच वन? दैट इज कॉल्ड फाइलम मोलस्का. सो मोलस्का में क्या चीज है? रेडिला आपको याद रखना है.
ओपन सर्कुलेशन आपको याद रखना है, राइट। और बाकी तो विसरल हम्प और मेंटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो शेल, वी विल सी द शेल। एक शॉर्ट में हम लोग शेल देख लेते हैं इन केस ऑफ दैट इज कॉल्ड द मॉलस्क। शेल है क्या? शेल इज बेसिकली द सिक्रीशन secreted by that is called the skin of the mollusk, okay, that is you can say mantle भी बोल सकते हैं, secretion secreted by mantle, that is secreted by the mantle। और mantle को ही दूसरा नाम बुक में pallium दिया है, that is called the pallium, okay, so that is basically the shell। Usually the shell is external in case of mollusk। याद रखना mollusk में जो shell रहेगा ऊपर रहेगा, all the time the shell is outside, most of the time the shell is outside। सिर्फ internal किस में रहेगा, यानी ये समझ लो mollusk है तो shell almost all the time outside, इसको mantle या pallium बोलेंगे। लेकिन एक इसमें इंटरनल रहेगा, एक दो में। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? दैट इज द कटल फिश। इन कटल फिश द शेल इज इंटरनल। इन द कटल फिश यू कैन से द शेल इज इंटरनल। इन स्क्विड also the shell is internal। So and there is one more thing in case of that is called the cuttlefish। Every mollusk they have the open type of circulation except the cuttlefish। cuttlefish close circulation, याद रखना है आपको। बाकी हर mollusk में, आर्थ्रोपोड में कौन सा है? ओपन सर्कुलेशन। cuttlefish में क्लोज सर्कुलेशन। अब आपने ऑक्टोपस को देखा। ऑक्टोपस जब आप देखते हो, इफ यू सी, यू डोंट सी द स्कल फ्रॉम आउटसाइड। कभी भी आपको, जैसे ये ऑक्टोपस है, राइट, ये उसके मस्कुलर फूट है, बट यू डोंट सी द स्कल आउटसाइड। तो इसका मतलब ये है कि इनसाइड होगा, राइट, क्योंकि यहां तो हम लोगों ने लिखा नहीं उसका नाम। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ऑक्टोपस दे डोंट हैव शेल। याद रखना है आपको, दे विल आस्क यू इन एग्जाम। सो विच टाइप ऑफ शेल इज प्रेजेंट इन ऑक्टोपस? एक्सो और इनसाइड द बॉडी? नहीं, दो, बाहर भी नहीं है और अंदर भी नहीं है। ऑक्टोपस में कहीं पर नहीं है शेल। देयर इज नो कैलकेरियस शेल इन केस ऑफ द ऑक्टोपस, इट इज एब्सेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन। कटल फिश में शेल अंदर से है और क्लोज सर्कुलेशन है, और ऑक्टोपस में शेल ही नहीं है, राइट। बाकी तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह, माउथ अलग से है ऑक्टोपस, वो तो कंप्लीट ही रहने वाली है, राइट। इन केस ऑफ द ऑक्टोपस द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट एंड सर्कुलेशन हर जगह मैंने ऑलरेडी बोला ओपन है। सिर्फ क्लोज किधर है? कटल फिश में। क्लोज कटल फिश और शेल भी इनसाइड है कटल फिश में। ये कटल फिश थोड़ी अलग से आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट। देयर इज वन मोर थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर इन केस ऑफ ऑक्टोपस। इफ यू सी द ब्लड ऑफ ऑक्टोपस, इट इज ब्लू इन कलर। द ब्लड ऑफ ऑक्टोपस इज यूजुअली द ब्लू इन कलर because the pigment which carry the respiratory gases, जैसे हमारे इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, यहां पर ऑक्टोपस में या मॉलस्क में हीमोसाइनिन है। ब्लू कलर की पिगमेंट जैसे हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन है, यहां पर क्या है? हीमोसाइनिन है। इसीलिए उनका ब्लड कौन से कलर करेगा? दैट इज अ ब्लू इन कलर। रेस्पिरेशन तो ऑलरेडी हो गया, गिल से होता है, राइट। एक्सक्रीशन भी किधर से होता है? गिल से होता है। दे आर मोर एक्वेटिक। सीएनएस मैंने ऑलरेडी बोला कि देयर आर पेयर ऑफ गैंग्लियंस। गैंग्लियंस इधर भी है, सेरेब्रल है, दैट इज कॉल्ड थोरैसिक है, दैट प्लूरल है, विसरल गैंग्लियन है, राइट। पैरों में भी गैंग्लियन है, यानी ये पूरा हम लोग थोड़ा ऑक्टोपस ऐसा बड़ा कर देते हैं, राइट। यू कैन सी इफ आई मेक इट इन एनलार्ज। यहाँ ब्रेन में भी रहेगा, विसरा में भी रहेगा, विसरल हम्प में, पीडल में भी रहेंगे, एंड दे आर कनेक्टेड विद टुगेदर बाय द नर्व कॉर्ड। तो ये हो गए वेरियस टाइप ऑफ गैंग्लियन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी भी ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हुआ इन केस ऑफ द ऑक्टोपस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? ऑक्टोपस, नॉट ऑक्टोपस, मॉलस्क। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड द इचिनोडर्माटा। नाउ द नेक्स्ट इज, यू कैन से इट इज द इचिनोडर्माटा। Echinodermata. Echino means spiny and derma is skin. जहां पर skin spiny है, okay, you can see the example. Now we will see the example that is called the starfish. थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं हम लोग इसको, starfish को, okay. I will just make it enlarge. थोड़ा सा flip करके देखते हैं, so we can see the structure.
तो बेसिकली ये जो देख रहे हैं आप, दैट इज माउथ, ये नीचे रहेगा, राइट? कभी भी स्टारफिश इस तरह से रहेगी, सो ये नीचे रहेगा, और दिस वन द बैक साइड जो ऊपर रहेगी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टारफिश, हम लोग बाद में देखते हैं, राइट? ओके, सो इट इज द स्पाइनी बॉडी रहेगी, एंड द स्केलेटन इन केस ऑफ स्टारफिश इट इज एंडोस्केलेटन, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे मॉलस्क में हम लोगों ने देखा था स्केलेटन, मॉलस्क में स्केलेटन किस तरह से था? इन केस ऑफ मॉलस्क स्केलेटन इज थोड़ा सा एक्सोस्केलेटन था, शेल टाइप का था, हियर इट इज एंडोस्केलेटन, एंड इट इज ऑल्सो कैलकैरियस, ओके, कैलकैरियस शेल जैसे है, लेकिन शेल नहीं है, कंप्लीट प्लेट नहीं रहते, इस तरह से ऑसिकल्स रहते हैं वो, राइट? सो ऑसिकल्स आर जॉइन वन, कैल्शियम के छोटे छोटे ऑसिकल्स रहते हैं, और वो अंदर रहेगा, दिस इज द एंडोस्केलेटन इन केस ऑफ दैट इज कॉल्ड इचिनोडर्मेटा, राइट? ऑल इचिनोडर्मेटा उनका है एक्वेटिक, और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी नहीं है, दे आर ऑल एक्चुअली द मरीन वन। बाकी ऑर्गन सिस्टम लेवल सेम है, ऑर्गन सिस्टम लेवल इज प्रेजेंट, ये तो अभी सब में सेम ही रहेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी सेम ही रहेगा। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। अब यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारे अभी बायलैटरल, लेकिन द रेडियल सिमेट्री यू कैन सी इन केस ऑफ इचिनोडर्मेटा। So, in case of Echinodermata, the adult जो है उसमें आपको रेडियल सिमेट्री दिखेगी। इफ यू कट द एडल्ट यू कैन सी द रेडियल सिमेट्री, बट इन केस ऑफ लार्वल फॉर्म यू कैन सी द बायलैटरल सिमेट्री। दैट्स व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक सब इसमें आपको बायलैटरल आ रहा था, यहां पर वापस आपका रेडियल सिमेट्री आ गया, लेकिन कौन से? एडल्ट में। सो दे माइट आस्क यू द क्वेश्चन, इन केस ऑफ इचिनोडर्मेटा इन द लार्वल स्टेज विच टाइप ऑफ सिमेट्री यू कैन सी। और हमें लगता है कि अरे इचिनोडर्मेटा में तो रेडियल सिमेट्री एंड वी जस्ट गो फॉर द रेडियल सिमेट्री। नो, in the larval stage of Echinodermata you can see bilateral symmetry, and in adult stage only you can see the radial symmetry. बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज द कंप्लीट। इसका माउथ कभी भी नीचे रहेगा, इफ यू सी दिस इज लाइक द स्टारफिश, तो नीचे रहेगा माउथ और ऊपर एनस रहेगा। इसका कंप्लीट है तो दोनों ओपनिंग है, तो ये जब भी पानी में रहेगा इस तरह से, सो वेस्ट वो ऊपर भेजेगा और माउथ नीचे से वट एवर ही वॉन्ट टू ईट। इन केस ऑफ स्टारफिश यू कैन सी द माउथ विच इज ऑन द that is called ventral side and the anus is on the back side, that is on the dorsal side. So आप देख रहे हो स्टारफिश को, this is the mouth, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं, राइट? सो चला गया नीचे, राइट? तो ये हो गया, इस तरह से रहेगा पोजीशन। तो ये है माउथ और यहां से वो एक्सक्रीशन करेगा। हम लोग थोड़ा सा टिल्ट करके देखते हैं इसको होता है क्या, तो राइट, ओके, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द माउथ नीचे से, एंड दिस इज द व्हाट इज दैट कॉल्ड एनस, यहां से वो वेस्ट बाहर निकालेगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द टू ओपनिंग, दैट इज अ कंप्लीट ओपनिंग यू कैन सी इन केस ऑफ द स्टारफिश। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है ही नहीं इसमें, देयर इज वन मोर पॉइंट, excretory system is absent। एक और important point है, there is no excretory system in case of the Echinodermata, right? So this is all about your which one, जो भी excretion है उसके अंदर जो भी water vascular canal system है, right? So वहां से सारी चीजें बाहर नहीं, जैसा आपका पोरीफेरा में था वैसे ही स्टारफिश में या Echinodermata में water वैस्क्यूलर सिस्टम है, याद रखना है आपको। पूरे बॉडी में इस तरह से पानी जाएगा, एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से निकलेगा, जैसा पोरीफेरा में जाता था। और सो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड इचिनोडर्मेटा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन। ये याद रखना है आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। अभी पानी से कुछ फूड पार्टिकल अंदर आएगा, उसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम में से बाहर निकल जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज द वाटर वैस्कुलर सिस्टम। लोकोमोशन के लिए भी हेल्प हो सकता, राइट? या उसका व्हाट इज दैट कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए भी हो सकता है, राइट? In case of that is called the Echinodermata, or if you see the example of that is called the starfish। हम इसको थोड़ा फ्लिप कर देते हैं, यानी आपको पूरी दिखेगी, राइट? सो इसका फ्लिप हो गया, दैट्स इट। सो फ्लिप होने के बाद इफ यू सी
in starfish the asexual reproduction is possible, right? So these are the starfish. सेंट्रल में एक डिस्क रहेगी, ओके. सो दीज आर द आर्म्स. ये माउथ रहेगा ऊपर से, नीचे से माउथ रहेगा और ऊपर से ये. तो किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? दे कैन स्प्लिट इनटू टू हाफ्स, राइट. एक इधर आ जाएगा, राइट, एंड नाउ दे विल फॉर्म द न्यू स्टारफिश. और ये दूसरा सेंट्रल डिस्क इधर आ जाएगा एंड नाउ दे विल फॉर्म द न्यू स्टारफिश. तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द स्टारफिश. स्प्लिटिंग से होता है, राइट. एंड देयर इज वन मोर थिंग विच इज पॉसिबल इन केस ऑफ स्टारफिश. रीजनरेशन होता है यहाँ पर, राइट. यानी ये समझ लो आर्म्स टूट गया तो ये आर्म वापस आ सकता. दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन. याद रखना, ट्रू रीजनरेशन नहीं. प्लानेरिया में आपको ट्रू रीजनरेशन मिलता है, यानी एक सेगमेंट से पूरा आपका प्लान एरिया बन जाएगा, लेकिन यहां पर पूरा नहीं बनता है, सिर्फ यहां रिपेयर हो रहा है उतना रीजनरेट होके. सो दिस इज रीजनरेशन इन केस ऑफ प्लान एरिया. दैट इज अ ट्रू रीजनरेशन, राइट. और डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट. वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, लार्वल फॉर्म है, एडल्ट फॉर्म है, तो 100% डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं है. कैसा है? दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स कम्स अंडर द स्टारफिश. ये तो हो गया आपका एक स्टारफिश. एक और हम लोग देखते हैं सी अर्किन करके. सी अर्किन, आई विल शो यू द नेक्स्ट वन. दैट इज कॉल्ड, देखो कैसा स्पाइनी है पूरा, एक दो स्केलेटन, एंडो नहीं, स्केलेटन कैसा है पूरा स्पाइन. स्केलेटन, द बॉडी सरफेस इज यूजुअली मोर स्पाइनी. दैट इज व्हाई वी कॉल देम इचिनोडर्मेटा. द स्किन इज यूजुअली स्पाइनी. सो दिस इज ऑल अबाउट वन ऑफ द एग्जांपल जिसको हम लोग बोलते हैं स्टारफिश को हम लोग बोलते हैं एस्टेरिस. एस्टेरिस यानी स्टार फिश. Okay, so this is one of the example of your Echinodermata. Sea urchin. Sea urchin is the example of your which one? That is called the Echinodermata. Sea lily. उनके शेप से उनके नाम है. सी अर्किन हो गया, सी लिली हो गया, राइट. एक क्यूक्यूम्बर के शेप जैसा रहता है उसको बोलते हैं सी क्यूक्यूम्बर, राइट. इस तरह से रहेगा वो, राइट. सो इट इज कॉल्ड सी क्यूक्यूम्बर. और एक है ओफेरिया. दैट इज कॉल्ड ब्रिटल स्टार. दैट इज कॉल्ड ब्रिटल स्टार, जिसको हम लोग बोलते हैं ओफेरिया. दैट इज कॉल्ड ओफेरिया. OPHIURA. दैट इज कॉल्ड ब्रिटल स्टार. सो द स्टार है लेकिन थोड़ा सा ब्रिटल है, ओके. सो दीज आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ योर विच वन दे कम्स अंडर योर विच वन. दैट इज कॉल्ड द इचिनोडर्मेटा. रीजनरेशन होना यानी ये टुकड़ा गिर जाएगा, माइट भी किसी दूसरे एनिमल ने इसको पकड़ने के लिए खा लिया, नाउ इट कैन रीजनरेट. इसको रीजनरेशन बोलते हैं हम लोग. ट्रू रीजनरेशन यानी क्या? जैसे प्लानेरिया में आपने देखा कि एक छोटा सा सेगमेंट पूरा नया वर्म बनाएगा, राइट. सो दैट इज कॉल्ड ट्रू रीजनरेशन. सो देयर आर टू टाइप ऑफ रीजनरेशन. वन इज कॉल्ड रिपेरेटिव एंड अनदर इज कॉल्ड रिस्टोरेटिव. अनदर इज कॉल्ड रिस्टोरेज करना. रिपेरेटिव एंड रिस्टोरेटिव. सो रिपेरेटिव यानी रिपेयर करने वाला और रिस्टोर यानी पूरा नया बनना. दैट इज कॉल्ड रिस्टोर हो जाना बॉडी. सो हियर यू कैन सी द रिपेरेटिव और रीजनरेशन इन केस ऑफ द इचिनोडर्मेटा, राइट. एंड रिस्टोरेटिव आपको कहां मिलता है? प्लानेरिया में मिलेगा आपको रिस्टोरेटिव. ट्रू रीजनरेशन आपको कहां मिलेगा? दैट इज इन केस ऑफ प्लानेरिया.